ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈ-ਫਾਈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਈਟੀਟੀ ਕੇਡਰ ਪੇਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾफ़ੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੋਡਲ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਮੋਡਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਥੌਮਸਨ ਮੋਡਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਡਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੋਡਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਥੌਮਸਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਦੈਟ ਐਨ ਐਟਮ ਵਾਜ਼ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮਟੀਰੀਅਲ and the negative charge particle electrons were embedded in it like seeds in the watermelon. The red edible part of the watermelon is compared with the positive charge in the atom. ਹਾਂਜੀ, ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸੋਲਿਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਐਟਮ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰਬੂਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਸੀਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰੈੱਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡਸ ਬੀਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ? ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉੱਪਰ। ਕਲੀਅਰ। ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਨਿਊਟਰੋਨ ਸੀ। ਨਿਊਟਰੋਨ 'ਤੇ ਕੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ ਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮੋਡਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਔਰੰਜ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੈੱਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸੀਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੀਡਸ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਮੋਡਲ ਸੀ ਇਹ? ਥੌਮਸਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਥੌਮਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਕੀ ਸੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਉਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਡਲ। ਜੇ ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੋਨ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਐਟਮ। ਜੇ ਥੌਮਸਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਐਟਮ ਬਣਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਫਸਟ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮਬੈਡਡ ਇਨ ਇਟ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ। ਐਮਬੈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਨ ਐਨ ਐਟਮ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਐਨ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ, ਨੋ ਓਵਰਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਊਟਰਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਨਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਆਏ ਰਦਰਫੋਰਡ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਦਰਫੋਰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਟਮ ਕੰਸਿਸਟ ਮੋਸਟਲੀ ਆਫ ਐਮਟੀ ਸਪੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਥੌਮਸਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਪੇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਬਟ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿਲकुल, ठीक है, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रैजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटोमिक स्फीयर। इन्हें अपन दसिया सी ना कि भी इन्हें न्यूक्लियस की खोज की सी पॉजिटिव चार्ज वाले दी, तो ये एटोमिक मॉडल के अकॉर्डिंग की सीगा भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ सेंटर के विच हुंदा है, किहदे विच, न्यूक्लियस के विच, ठीक है। बाकी सारी जगह जिहड़ी की है खाली पई हुंदी है। तो इन्हें दसता कि पॉजिटिव चार्ज सारे किते स्प्रैड नहीं होया होया, सिर्फ की है सेंटर के विच है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कंपेयर टू साइज़ ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, कि जिहड़ा अपने कोले साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत ज़्यादा, जिस तरह कि आप ले ली भी इन्ना वड्डा न्यूक्लियस है, सॉरी एटम है, तो यदा न्यूक्लियस की होगा बिल्कुल आह बिंदी जी है जी की होगा न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की वॉल्यूम है जी बहुत समॉल है एटम की वॉल्यूम तो। नैक्सट अपने को है द इलैक्ट्रॉन विदिन एन एटम मस्ट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरीअस डिस्टेंस at very high speed in the order to balance the electrostatic force of attraction between protons and electrons। की कहा कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ये आले दुआले की नैगेटिव चार्ज वाले इलैक्ट्रॉन आ जोड़े घूमते हैं, ये की पॉजिटिव है कि नैगेटिव वाले ने, तो इन्हों के इलैक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शनस ने जोड़े इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस वो हमेशा लगदियां रहिंदियां ने, तो ये हाई स्पीड ते न्यूक्लियस के आले दुआले घूमते रहंदे आ। इस तरह इन्हें एक्सपैरीमेंट किया सी गोल्ड फॉइल ते सोने की एक पतली तार ते एक्सपैरीमेंट किया सी रदरफोर्ड ने। इन्हें की लिया सी एक आ वाली शील्ड ले ली, शील्ड एक बॉक्स ले लिया बिल्कुल, ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखता जिदे तो कि रेडिएशनस बाहर निकलणगियां, ठीक है। सब तो पहले इन्हें की किया, एक शील्ड बॉक्स लिया लैड की शील्ड का, वो एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखता जिदे तो कि रेडिएशनस आ रही सी बाहर, ठीक है। फिर इत्थे की इन्हें एक स्क्रीन लगाती, स्क्रीन या स्लिट कह सकते हैं आप, स्क्रीन के एक छोटा जिहा होल करता कि जी रेडिएशन है सिर्फ ये विचों दी पास कर सके, ठीक है, एवें किया। फिर उस तो बाद जो रेडिएशन इतों की पास हो गई ये विचों दी, तो मूहरे की रखती पतली जी गोल्ड फॉइल, सोने की एक पतली तार रख दी, ठीक है। ये रेडिएशन की उहदे नाल जाके टकराइयां, तो तार दे नाल टकरा के अलग अलग दिशावां दे विच चलियां गईयां, ठीक है। इन्हें अलग अलग दिशा के आले की है फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाती, मूवेबल फ्लोरोसेंट स्क्रीन, मतलब कि यह जी स्क्रीन सीगी वो की करती सी, घूमती सी एवें आले दुआले, तो जिथे भी जोड़ा इतों पार्टिकल रिलीज़ होगा मिट होगा वो स्क्रीन पर जाके टकराऊ जदों, तो आपां की है उतों ब्राइट कलर का स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है। तो आपने माइक्रोस्कोप रख लिया एंड ते, माइक्रोस्कोप के आप देख सकते सी कि जोड़े पार्टिकल्स इतों आ रहे हैं वो कित्थे स्ट्राइक करा रहे तो किन्ने किन्ने आ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि ये जोड़ा जी रेडिएशन टकराइयां सी जाके गोल्ड फॉइल के नाल, वो किहड़े पार्टिकल्स सी उहदे विच, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल आप पढ़े सी ना कल, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, तो ये याद रखना है अल्फा पार्टिकल सीगे जिहड़े गोल्ड फॉइल नाल जाके टकराए सी, तां करके रदरफोर्ड के एक्सपैरीमेंट नूं अल्फा रे एक्सपैरीमेंट भी कहा जाता है। क्लीयर, देखो इन्हें की ऑब्जरवेशन कीतियां, कहना जो ट्रांसमिटेड बीम लिटल और नो डिफ्लैक्शन, ਸਕੈਟਰਡ बीम स्मॉल, ਸਕੈਟਰਡ बीम लार्ज। ਇਹਦਾ मतलब की सी कि ਜਦੋਂ ਆਹ लाइट गई तो बहुत घट रेडिएशन ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ ਉਵੇਂ वापस आ गई, यानी कि 180 डिग्री ते वापस आ गई ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ बहुत घट ਸੀਆਂ। बहुत सारिया ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ छोटे छोटे एंगलों से डेविएट कर गईਆਂ, बहुत सारिया ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ एंगलों से डेविएट कर गई जिन्हों ने विच लार्ज एंगल बनिया, ठीक है। इस तरह की ऑब्जरवेशन की। उस तो बाद की होया उन्हें इस तरह नोट किया कि मान लो जी ये है गोल्ड के एटम्स है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इन्होंने टकरा रहे हैं, तो बहुत सारे सी जोड़े थोड़े थोड़े डिफ्लैक्शन कर रहे सी, हज़ारां दे विचों कोई एक पार्टिकल यह जिहा सी, ठीक है, आप कह सकते हैं कि 20,000 दे विच कोई एक पार्टिकल यह जिहा सी जिहड़ा जिस तरह टकरा रहा सी उस तरह जाके वापस आ रहा सी। इत्थों आपां नूं की पता लग्गिया कि जे थॉमसन के अकॉर्डिंग सारे मॉडल दे विच पॉजिटिव चार्ज हुंदा, तो आपां नूं पता अल्फा पार्टिकल भी की हुंदे ने पॉजिटिव चार्ज वाले हुंदे आ, तो पॉजिटिव एक दूजे नूं दूर दूर करदे, रिपैल करदे, क्योंकि सेम चार्ज एक दूजे नूं आकर्षित करदे आ, दूर करदे आ। तो फिर अल्फा पार्टिकल नूं ये सारे पार्टिकलों ने दूर करना सीगा, पर नहीं कीता। की होया 20,000 दे विचों कोई एक पार्टिकल है जैसी जिहड़ा की है जिवें गया सी टकरा के उवें वापस आ गया। ਇਹਦਾ मतलब इत्थों आपां नूं पता लग्गिया कि जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है वह बहुत ज़्यादा थोड़ी जगह दे विच है,
क्योंकि जे सारी च हुंदा तां सारे पार्टिकल वापस आने चाहिए सी। पार्टिकल किसी टकरा के अग अलग अलग एंगलों ते की है डिफलैक्ट कर गए। ठीक है, इत्थों ही आपां ने किहदी खोज कीती सी, न्यूक्लीअस दी, कि न्यूक्लीअस है जिहड़ा कि है पॉजिटिव चार्ज वाला एटम दे बिल्कुल सेंटर दे विच हुंदा। ठीक है, इस तरह दा सारा सैटअप सीगा जिहड़ा रदरफोर्ड ने कीता सी। नैक्सट अपने कोले कुछ लिमिटेशनां ने रदरफोर्ड दे मॉडल दियां, देखते हैं आपां। फर्स्ट लिमिटेशन हैगी है एनी चार्जड पार्टिकल वैन एक्सलेटेड इन इज़ एक्सपैक्टेड टू रेडिएट एनर्जी। हुण आपां नूं पता है कि जदों जे आपां सिंपल लाइफ दे विच देखीए, जदों कोई भी बंदा काम करदा है तां आपां पूरी दिन उन्नी ही एनर्जी नाल वर्क नहीं कर सकते, अपने सारे दिन दे विच कि एनर्जी लॉस हुंदी रहिंदी आ। ठीक है, इस तरह नाल जिहड़े पार्टिकल सी वो एक्सलेट कर रहे सीगे, तां इहदा मतलब वो घूमदे घूमदे उन्हां दा भी एनर्जी लॉस होऊगा। अगर ये सही च होया तां जे इलैक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करन लग गए फिर तो घूमदे घूमदे आके की है न्यूक्लियस दे विच डिग जाणगे, फिर जिहड़ा एटम है स्टेबल नहीं रहना। तो यह की है सब तो वड्डी लिमिटेशन सी रदरफोर्ड दी, इहनूं रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया सी। हुण आपां पढ़दे हां कि सर्कुलर ऑर्बिट दे विच इलैक्ट्रॉन वुड नीड टू अंडरगो एक्सलेशन, कि उन्हां नूं घूमना पैंदा है, देयरफॉर इट वुड रेडिएट एनर्जी, एनर्जी लॉस हुंदा है। द रिवॉल्विंग इलैक्ट्रॉन लॉस एनर्जी फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस दे विच जाके डिग जूगा, फिर की है एटम है जिहड़ा एग्जिस्ट ही नहीं करूगा, स्टेबल नहीं होगा। यह इहदी फर्स्ट लिमिटेशन सी। सैकेंड लिमिटेशन की सी, रदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉन इन द एक्सट्रा न्यूक्लीयर पोर्शन ऑफ द एटम, कि एटम के दुआले इलैक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन किमें करनी है, ये बारे भी रदरफोर्ड ने आपां नूं नहीं दस्सिया सीगा। नैक्सट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम वैन चार्जड इलैक्ट्रॉन आर मूविंग अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जड न्यूक्लीयस, कि न्यूक्लीयस के प्रभाव के नीचे जिहड़े इलैक्ट्रॉन घूम रहे सी आले दुआले वो की है एटम की स्टेबिलिटी किमें दर्शाउंदे आ, इहनूं भी जिहड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाया सी। थर्ड अपने कोल आया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने आपां नूं की दस्सिया कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के दुआले किसी डेफिनेट वेलोसिटी के नाल ते सर्कुलर ऑर्बिटां दे विच जिहड़ा ये डिस्टेंस हुंदा न्यूक्लियस तो वो की फिक्स हुंदा है, ते एनर्जी है जिहड़ी इलैक्ट्रॉनां दी वो कॉन्सटेंट रहिंदी है, मतलब कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुंदा। ठीक है, सिर्फ एनर्जी लॉस कदों हुंदा है जदों की है कोई इलैक्ट्रॉन एमिट हुंदा है जां की है ऑब्जर्व करदा है, एनर्जी ऑब्जर्व करके हाई स्टेट दे विच जांदा है जां एनर्जी नूं बाहरे कढ के एमिट करके लो स्टेट दे विच जांदा है। ठीक है, तां ही जिहड़ी एनर्जी लॉस हुंदी है, नहीं जिहड़े एनर्जी स्टेट्स नेगियां ये की ने स्टेशनरी। इन्हें यह कहा सी कि जिहड़ा न्यूक्लियस है उहदे आले दुआले ऑर्बिट बने हुंदे ने जिहड़े कि फिक्स हुंदे आ। इहदे मॉडल नूं आपां सोलर सिस्टम दे नाल सूरजी परिवार दे नाल कंपेयर करदे हां कि जिस तरह ग्रह ने जिहड़े उस ऑर्बिट दे विच सूरज दे दुआले घूमदे रहिंदे आ ते उन्हां दा कदे भी घूमदे घूमदे एनर्जी लॉस नहीं हुंदा। ठीक है, इस तरह नाल ही की है इलैक्ट्रॉनां दा भी एनर्जी लॉस नहीं हुंदा। इस तरह का इहदा मॉडल सीगा। इन्हें दस्सिया सी, इन्हें शैल बनाए सी अपने कोले, ऑर्बिटां दा नाम दिता सी अपने कोले। एक ही है न्यूक्लियस है, आ वाला फर्स्ट ऑर्बिट है, सैकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ। इस तरह नाल के तो स्टार्ट होके एंड तक जाते हैं, के एल एम एन ओ पी इस तरह नाल जाते हैं। ठीक है, जिहड़ा के वाला हैगा के शैल है जिहड़ा वो की पहला अपने कोले ऑर्बिट है जिथे एन की वैल्यू 1 हुंदी है। जिहड़ा दूसरा है के तो बाद चो एल उत्थे एन की वैल्यू 2 है, फिर एम एन की वैल्यू 3 है। इस तरह नाल एन की वैल्यू की है के एल एम एन तो इनक्रीज करती जाती है। यही अपना नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट है। हुण कुछ एदियां भी लिमिटेशनस सीआं, ठीक है, जिहड़ियां आपां ने पढ़नियां। इन बोहर मॉडल द क्वांटम आइडिया ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ मिक्सड अप विद क्लासिकल आइडिया ऑफ कोलंबिक फोर्सिस। तो कहता इहदा जिहड़ा स्टेशनरी इन्हें दस तां दिता सी भी ऑर्बिट ने जिहड़े फिक्स नेगे, पर जिहड़ा क्लासिकल आइडिया सी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शनां हुंदियां ने न्यूक्लीयस ते इलैक्ट्रॉनां दे विचाले, उन्हां नूं एक्सप्लेन नहीं कर पाया सी। द अंजम्पशन ऑफ एनी सर्कुलर ऑर्बिट इज़ अल्टरली अनजस्टिफाइड। तो जिहड़ा उन्हें सर्कुलर ऑर्बिट लए सीगे उन्हां नूं उन्हें लै तां लिया भी डिस्क्रीट लैवल्स ते हुंदे आ, पर उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि यही ऑर्बिटर दे विच हाइड्रोजन एटम है जिहड़ा वो सैटिस्फाई नहीं कर पाया, हाइड्रोजन नूं ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, जिहड़ा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर सीगा मेन इहदी लिमिटेशन ये सी कि जिहड़ा हाइड्रोजन का फाइन स्ट्रक्चर सीगा उन्होंने की एक्सप्लेन
नहीं कर पाया। इट कुड नॉट मेक एनी कैलकुलेशन अबाउट द ट्रांजिशन और सिलैक्शन रूल विच अप्लाई टू दैम। ये जोड़े रूल आप अगे जाके पढ़ांगे, ट्रांजिशन की हुंदा, सिलैक्शन रूल की हुंदे है, इन्हों भी जो बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया सी। एक ये लिमिटेशनस ने, आप किसी भी मॉडल में ये नहीं कह सकते कि मॉडल है जो फेल हो गया। हर एक मॉडल के विच लिमिटेशनस आईयां, कोई कमियां रह गई जिन्होंने कि किसी अगले साइंटिस्ट ने जाके सुधारिया, क्योंकि जो शुरुआत ही ना होंदी तो मॉडल्स ने जोड़े बनने ही नहीं सी। नैक्सट आ गया अपने को एटॉमिक नंबर ते मास नंबर की चीज़ होंदी है। देखो मास नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। जे आप किसी का भी मास नंबर लिखना हो, मास नंबर को आप ए दे नाल लिखते हैं। ए की होंदा है नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन ते प्रोटोन का जोड़ा जोड़ होंदा है, आप पढ़िया सी कि न्यूक्लियस के करके ही एटम का भार होंदा है। तो न्यूक्लियस दे विच कौन होंदे ने, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन। तो यदा मतलब एटॉमिक नंबर है जिहड़ा वो कादे करके हो गया, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन करके हो गया। एटॉमिक मास एटॉमिक मास कादे करके हो गया, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन करके हो गया। ਇਹਦਾ मतलब एटॉमिक मास ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ लिख सकते हैं भी किन्ने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सी प्लस किन्ने नंबर ऑफ प्रोटोन सी। हुण अपने को आ गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप पहले वाली वीडियो भी देखिए किते डिपेंड करता है, प्रोटोन्स ते। किसी भी एटम दे विच जिन्ने नंबर ऑफ प्रोटोन होंदे ने उही उहदा की हुंदा है एटॉमिक नंबर। इहनूं आपां Z दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। क्लीयर। अगर आपां की करिए Z दे विचों एटॉमिक मास माइनस कर दीए तो एटॉमिक मास के विचों Z माइनस कर दिए तो अपने को रह जाऊगा एटॉमिक नंबर रह जाऊगा। क्लीयर। देखो किसी भी जोड़ा एटम है आप रिप्रजेंट एवें करते हैं, जिस तरह कि ए हाइड्रोजन, इत्थे आप Z सैंबल पा देने। ए किनू रिप्रजेंट करता है, मास नू रिप्रजेंट करता। मास की हुंदा है, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। Z किनू रिप्रजेंट करता है, एटॉमिक नंबर नू रिप्रजेंट करता है। एटॉमिक नंबर की हुंदा, नंबर ऑफ प्रोटोन्स। क्लीयर। इस तरह तुसीं दा स्ट्रक्चर देख सकते हो। नैक्सट आप एवें भी एक्सप्लेन करिया होया प्रॉपर तरीके नाल कि जिहड़ा एटॉमिक नंबर है उन्होंने आप Z दे नाल लिखते हैं। एक ही हुंदा प्रोटोन्स ते डिपेंड करता है। Z नूं आपां प्लस P भी लिख सकते हैं जाकि इलैक्ट्रॉन, क्योंकि आपां नूं पता है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ते प्रोटोन की हुंदे है, सेम हुंदे है किसी भी एटम दे विच। तां आपां एवें भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। नैक्सट है अपने को मास नंबर। मास नंबर की है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन ते न्यूट्रॉन किन्ने है। ठीक है, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन का जोड़ की है, मास। इस तरह नाल आपां सैंबल रिप्रजेंट करते हैं। ए की मास नंबर, Z की एटॉमिक नंबर, X की है एलीमेंट का सैंबल है। नैक्सट अपने को एक बोहर-ब्यूरी स्कीम सी, बोहर-ब्यूरी रूल। इस रूल ने आपां की दसिया सी, ये कहता कि आपां ने जिस तरह आप पढ़ के आए हैं बोहर के मॉडल के विच कि उन्हें दसिया सी कि विचाले न्यूक्लियस है, आले दुआले की है ऑरबिट्स नेगे। पहला ऑरबिट है, दूजा ऑरबिट है, तीजा ऑरबिट है। तो कहते हुण आपां नूं ऑरबिटां दे विच एवें किवें पता लगूगा भी किहड़ी ऑरबिट दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन पाउणे आ। तां जिहड़ा बोहर-ब्यूरी सीगा उन्हें आपां नूं एक रूल दिता सी, उस रूल के अकॉर्डिंग आपां किहदे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो आप उहदा फार्मूला याद करना, फार्मूला की सी 2n²। n की सी नंबर ऑफ सैल, मैं तुहानूं पहले ही दस के आई हाँ कि जिवें अपने कोले की सी K L M N, इस तरह नाल जिहड़े अपने कोले ऑरबिट जा रहे सी। तो आपां नूं पता है K दे वास्ते N की वैल्यू कितनी हुंदी है, 1 हुंदी है। L दे वास्ते 2, M 3, N 4, O दे वास्ते 5। इस तरह ना वैल्यू चलती है। हुण आपां ये देखना चाहुंदे हां कि K शैल दे विच किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ऐड होणगे। तो आपां नूं पता K दे वास्ते N की वैल्यू 1 है। फॉर्मूला की है 2n²। तो 2 1 दी स्केयर कितना आ गया 2। ਇਹਦਾ मतलब फस्ट दे विच आपां किन्ने इलैक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलैक्ट्रॉन भर सकते हैं। नैक्सट अपने को है जिस तरह कि आपां ले लेने M। M दे वास्ते N की वैल्यू कितनी हुंदी है, 3 हुंदी है। फॉर्मूला की अपने कोल 2n², 2 3 दी स्केयर, 2 3 स्केयर कितना हुंदा है 9। ਇਹਦਾ मतलब आपां किन्ने इलैक्ट्रॉन भर सकते हैं 18। इस तरह नाल कि अपने कोल न्यूक्लियस है, ਇਹਦੇ आले दुआले ऑरबिट्स बने हुए हैं K
L M N इस तरह नाल ऑर्बिट्स बने हुए हैं। तो आप की कर सकते हैं, इन्हां दे विच आपां इलैक्ट्रॉन रख सकते हैं। इलैक्ट्रॉन आपां नूं पता है कि के दे विच किन्ने हुंदे है 2, तो आपां इहदे विच किन्ने पावांगे 2 पावांगे। नैक्सट दे विच आपां जदों एन दी वैल्यू 2 भरांगे तो किन्ना जो अपने कोले 8, इहदा मतलब नैक्सट दे विच आपां 8 इलैक्ट्रॉन भरांगे। ठीक है, इस तरह ना फिलिंग करांगे आपां। अगले 18 भरांगे, अगले 32 भरांगे, तो इस वाले फॉर्मूले तो आपां नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नूं जिहड़ा फाइंड कर सकते हैं। नैक्सट टॉपिक हैगा इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हुंदी है? इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपां नूं यह दसदी है कि किसी भी एलीमेंट दे विच जिहड़े पीरियोडिक टेबल दे विच आपां एलीमेंट पढ़दे हां उहदे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किन्ने है। इलैक्ट्रॉन कन्फिगरेशन टेल्स अस इन विच ऑर्बिटल द इलैक्ट्रॉन फॉर एन एलीमेंट लोकेटेड, कि किहड़े ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन पए आ ते किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पे आ। इहदे वास्ते आपां बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रूल देखने आ, जिहड़े रूल आपां ने दसदे सी कि इलैक्ट्रॉन नूं आपां ने फिल किवें करना है। ठीक है, तो अपने कोल हैगा सी इलैक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल स्टार्ट विद लोएस्ट एनर्जी मूविंग अपवर्ड, कि जिहदी एनर्जी सब तो घट होगी पहलां आपां उहदे च इलैक्ट्रॉन पावांगे, फिर उस तो ज़्यादा एनर्जी वाले च, फिर उस तो ज़्यादा च, जानी कि पहलां आपां के च पावांगे, फिर एल च, एम च, एन दे विच। इस तरह नाल आपां इलैक्ट्रॉनां दी फिलिंग करते जावांगे। कौन कहंदा सी ये? अफवाऊ प्रिंसीपल। ठीक है, फिर दूसरा जिहड़ा रूल सी वो कहंदा सी भी कोई भी 2 इलैक्ट्रॉन ने जिहड़े सेम स्पिन नाल नहीं आपां फिल कर सकते। जदों आपां एक ऑर्बिटल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन पाउणे हुंदे आ तां आपां नूं उहनां दी स्पिन है जिहड़ी अलग रखनी पैंदी है। ठीक है, ये जिहड़ी स्पिन है अलग दी रखनी पैंदी है, यही की है फर्क हुंदा 2 इलैक्ट्रॉनां च। थर्ड हैगा 4 ऑर्बिटल्स विद इन द सेम सबशेल लैवल इलैक्ट्रॉन फिल ईच ऑर्बिट सिंगली। जिस तरह कि अपने कोले 3 ऑर्बिटल ने, ये तुहाडे लई ये कंसैप्ट नहीं हैगा, ये हायर क्लासिस वास्ते है। दस दिंदे आ कि जिस तरह जिहड़ा पी है उहदे कोले 3 हुंदे आ, तो आपां पहलां सारिਆਂ ਨੂੰ एक एक इलैक्ट्रॉन देवांगे, उस तो बाद च आपां दूजा इलैक्ट्रॉन देवांगे। ठीक है, ये कुछ ला सी, तुसीं ये नहीं देखना, तुसीं सिर्फ देखना है कि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की चीज़ हुंदी है कि किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट ने एटम दे विच, वो की है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जिस तरह कि इत्थे बहुत सारिਆਂ दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है, तुसीं याद कर सकते हो। पहला आपां नूं एलीमेंट का नाम दिता है, दैन आपां नूं सैंबल कि हाइड्रोजन नूं आपां एच नाल लिखदे हां, हीलीयम नूं HE, लीथियम नूं LI, बरीलियम नूं BE, बोरोन नूं B, कार्बन नूं C। इस तरह नाल सारे की ने सैंबल्स ने इन्हां दे। ठीक है, फिर आपां ने लिखिया अटोमिक नंबर कि हाइड्रोजन पहले नंबर ते आउंदा, हीलीयम दूसरे ते, लीथियम तीसरे ते। इस तरह आपां ने 18 तक काउंटिंग करती। फिर आपां ने देखिया नंबर ऑफ प्रोटोन ते नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। आपां नूं पता है कि प्रोटोन्स अटोमिक नंबर के बराबर होंगे है, तो यदा मतलब जिन्ना जिन्ना अटोमिक नंबर होगा सेम ही की होगा नंबर ऑफ प्रोटोन्स। तो फिर आपां नूं यह भी पता है कि जिन्ने नंबर ऑफ प्रोटोन होंगे उन्ने नंबर ही की होंगे है इलैक्ट्रॉन्स। यदा मतलब अटोमिक नंबर प्रोटोन्स तो इलैक्ट्रॉन की है सेम रहूगा। उस तो बाद आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की है जोड़े वेरी करते रहते हैं, न्यूट्रॉन की वैल्यू है जी वेरी करती रही है। ठीक है, फिर अपने को KLM दे विच किवें लिखांगे, हाइड्रोजन को 1 सी वो के च भरता, फिर हीलीयम को 2 सी, आपां नूं पता मैक्सीमम 2 भर सकते एक दे विच, तो दूसरा भी के शैल दे विच भरता। लीथियम दे कोले 3 सी तो आपां 1 च मैक्सीमम 2 भर सकते हैं, 2 आपां ने के च भरते, जिहड़ा 1 रह गया वो L च भरता। इस तरह नाल आपां जिहड़ी फिलिंग है कीती हुई है सारी 2-2 भर के पहलां सारिਆਂ च जिहड़े बच गए वो बाकियां दे विच भरे हुए आ। ये अपने कोले सारा पीरियोडिक टेबल है 118 एलीमेंट्स वाला। ये तुसीं अप्रोक्सीमेट 30 के एलीमेंट्स ने जिहड़े याद कर सकते हो। जिंक तक हाइड्रोजन तो लैके इन्हां नूं तुसीं याद इस तरीके नाल करना, हाइड्रोजन, हीलीयम, लीथियम, बरीलियम, बोरोन, इस तरह नाल। ये जिहड़ियां ने इन्हां नूं रोज कहने आपां, जिहड़ियां हॉरीजेंटल ने, ते जिहड़े इस तरह नाल ने इन्हां नूं आपां कॉलम कहने आ। ये की ने वर्टिकल ने अपवर्ड। ये पीरियोडिक टेबल है, इन्हूं तुसीं ध्यान नाल पढ़ लेना, देख लेना। इहदे विच्चों ही आपां नूं एटॉमिक नंबर, सैंबल ते मास नंबर बारे पता चलदा है। नैक्सट अपने को है ने वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स। हुण जदों भी 2 एटम्स नूं आपां कंबाइन कराउने एक दूसरे दे नाल, उदों किवें कंबाइन हुंदे ने वो वैलेंस इलैक्ट्रॉनां दे करके। वैलेंस इलैक्ट्रॉन की हुंदे आ कि जिहड़ा सब तो बाहर वाला ऑर्बिट हुंदा है, सब तो बाहर वाला, उहदे विच जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ वो की हुंदे ने वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स। देखो
अ बैलेंस इलैक्ट्रॉन इज एन आउटर शैल इलैक्ट्रॉन ऑफ एटम दैट कैन फॉर्म अ कैमिकल बॉन्ड विद अनदर। कि जो भी कोई कैमिकल बॉन्ड बनता है उदों की है सिर्फ ये जोड़े बाहरले इलैक्ट्रॉन होंगे ने सिर्फ लास्ट शैल वाले सिर्फ वो पार्टिसिपेट करते हैं, जोड़े अंदर वाले इन्ने नेगे ये की बॉन्ड बनाने च कोई हिस्सा नहीं देंगे। ठीक है, सिर्फ बैलेंस यानी कि आउटर मोस्ट बाहरले शैल वाले ही की है पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन दे विच। हुण अपने कोले कुछ टर्म्स नेगियां, ये टर्म्स नूं समझांगे। सब तो पहला अपने कोले आ गया आइसोटोप्स। आइसोटोप्स नूं पंजाबी च भी आपां आइसोटोप्स ही कहने आ, समस्थानक। आइसोटोप्स की हुंदे आ कि जिन्हां दे कोले नंबर ऑफ प्रोटोन्स न्यूक्लियस दे विच की हैगा सेम रहणगे, सॉरी डिफरेंट एटम्स सेम नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटोन सेम होणगे, न्यूट्रॉन अलग अलग दे होणगे, उन्हां नूं की कहने आपां आइसोटोप्स। क्लीयर, नंबर ऑफ प्रोटोन्स सेम रहणगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट रहणगे। प्रोटोन आपां नूं किहदे बारे दसदे सी, एटॉमिक नंबर दे बारे। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ दूसरी डेफिनेशन ਐਂ भी दे सकते हैं कि आइसोटोप्स की होंगे ने जिन्हां कोले सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, कि जिन्हां दा एटॉमिक नंबर तो सेम हुंदा है बट मास नंबर डिफरेंट हुंदा है। जिवें इन्हां ने एग्जाम्पल दित्तियां ने कि कार्बन आ जिहड़ा, कार्बन दे 3 आइसोटोप हुंदे आ, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 जिवें भैन भरा कह दी 3 आइसोटोप्स ने कार्बन दे। ठीक है, इन्हां दा की अपने कोले एटॉमिक नंबर तो सेम है क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12। इनू आप डबल कर दें होंगे। ठीक है, तो अपने कोले की हैगा 6 का एटॉमिक नंबर है, तो यदा मास नंबर चेंज होंदा जा रहा क्योंकि एक न्यूट्रॉन आ जिहड़ा वो इनक्रीज़ करता जा रहा। पहला वाले 12 ने, फिर एक वध गया 13, फिर एक वध गया 14, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वध रहा ना। न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ने पर प्रोटोन सेम रह रहे हैं। ठीक है, इस करके इन्हों कहने आपां आइसोटोप्स। फिर अपने को आ गया आइसोबार्स। आइसोबार्स उहदा उल्टा हुंदी है। ठीक है, जिहदे विच की है प्रोटोन ते न्यूट्रॉन सेम रहिंदे ने बट सम ऑफ ईच प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इज़ डिफरेंट। इनू आप सिंपली एवें कह सकते हैं जिहदा एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास सेम। ठीक है, मास नंबर सेम हुंदा है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुंदा है, उन्होंने आपां की कहने आ आइसोबार्स। ये वाली जिहड़ी एग्जाम्पल दिती हुई है ये आइसोटोप दी है, आइसोबार दी नहीं हैगी। आइसोबार हुंदा सेम एटॉमिक मास। इत्थों आपां डिफरेंस क्लीयर करते हैं कि आइसोटोप ते आइसोबार दे विच की फर्क हुंदा है। सब तो पहला आइसोटोप की है डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सेम एलीमेंट, कि एलीमेंट इक्को ही हुंदा है। जिवें हाइड्रोजन है उहदे 3 आइसोटोप है, 1H1, 1H2, 1H3। इनू आपां की कहने प्रोटीयम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, 3 आइसोटोप ने हाइड्रोजन दे। ते मास की हुंदा तिन्हां दा डिफरेंट है, इहदा 1 है, इहदा 2 है, इहदा 3 है। मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर की है सेम है। आइसोबार दे विच इहदे विच अपोजिट होऊगा, डिफरेंट एलीमेंट होणगे, सेम एटॉमिक मास होऊगा, मास सेम होऊगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। इहदे विच यही दस्सिया एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, कैमिकल प्रॉपर्टी सेम, कैमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग दी होणगियां क्योंकि आइसोटोप ने भार अलग अलग हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल सेम रहणगियां। नंबर ऑफ प्रोटोन इलैक्ट्रॉन सेम रहणगे, न्यूट्रॉन अलग दे होणगे। इहदे विच सारे ही की है अलग अलग दे होणगे। आई होप तुहानूं डिफरेंस क्लीयर हो गया होना कि आइसोटोप की हुंदे है, आइसोबार्स की हुंदे है। नैक्सट अपने कोल है आइसोटोन्स। टोन्स तो याद रखना न्यूट्रॉन्स, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈਸੋਟੋਨਸ, ਕਿ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। क्लीयर, इस तरह ਆਪਾਂ ਨੂੰ एग्जाम्पल ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ कि अपने कोले एटॉमिक का ਜਿਹੜਾ मास ਇੰਨਾ ਸੀ, एटॉमिक मास ਇੰਨਾ ਸੀ, एटॉमिक नंबर ਇਹਦਾ 78 है, ਇਹਦਾ 74 है, बट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ने माइनस ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इधर भी 53 आ गए, इधर भी 53 आ गए।
तो अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की रह गए, सेम रह गए। हाँ जी, अज अपना ये चैप्टर कंप्लीट होंदा है। इन्ना ही चैप्टर असी अपना सारे चैप्टर नूं चंगी तरह नाल पढ़िओ। अगर किसी का भी कोई डाउट होवे तो तुसीं डाउट नूं क्लीयर कर सकते हो। वीडियो नूं वध तो वध लाइक करिया करो, आपां कमेंट भी जरूर करिया करो कि तुहानूं वीडियो किस तरह की लगी है। तुसीं अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तुहानूं की समझ आ रहा, की नहीं समझ आ रहा, जां तुसीं की चेंज चाहुंदे हो, जरूर कमेंट करके दस्सिया करो। वध तो वध शेयर करिया करो वीडियो नूं एंड चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो, तां जो हरेक जिहड़ी अपडेट आउंदी है वीडियो दी वो तुहानूं पता चल सके। थैंक यू।